Hello friends, welcome to Paralegal Study BPAG 172 Governance Issues and Challenges। उसकी फिफ्थ यूनिट हम करते हैं Changing Dimension of the Development। So friend, what do you mean by development? So development is a multi-dimensional and multi-sectoral process. In simple sense, we can say that development is not only associated with the economic development, but it also associated with the social development, cultural development, environmental development, and other scientifically development as well. So usually, if we analyze some event that during the Second World War, and we can say during the 20th century, the concept of development was somehow related to the economic growth only and the empowerment opportunities it offers. But over the period of time, the concept of development is continuously changing, and now economic development is related to the economical as well as social development। ठीक है कि पहले डेवलपमेंट जो है, अगर सिंपल भाषा में बात करें कि मल्टी डायमेंशनल और मल्टी कल्चरल क्यों बोला गया है, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, अभी और अदर जो उसके डायमेंशन होते हैं उस डेवलपमेंट की भी बात की गई है, चाहे वो सोशली डेवलपमेंट हो, कल्चरली हो, इस तरीके से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसे एक बड़ा ही फेमस कोट है नेहरू का, उन्होंने कहा था कि डैम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये डैम बनते हैं रिवर पे, तो उन्होंने कहा था कि ही सेड ए डैम वाज ए मॉडर्न टेम्पल, and he also told the people that who are displaced due to the construction of the Hirakud dam in the 1948. He pointed out that if you are to suffer, you should suffer in the interest of the country. So gradually it means that कि उन्होंने भी ये माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, डैम, these are the part of the development. So if any persons or group of individuals or persons somehow displaced due to these infrastructures, then it also we understand that this suffer is mainly for the interest of the country। कि उन्होंने यही कहा कि भाई आप अगर ये ऐसा होता भी है तो वो आप देश के लिए कर रहे हो, हम वी कांट सर्वाइव और वी कांट अचीव आवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विदाउट दीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये एक सिंपल सा डेवलपमेंट का मॉडल है। एंड वैसे हम बात करें तो देर आर टू काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। द फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल इज known as the state led development model. This particular model is adopted by the USSR and now China. State led development model means state can interfere in the economic matters and state controls the economy. Other development model is related to the economical development, which is purely based on the capitalist economy, and this model is favored by the many European country and especially the USA. तो दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक में स्टेट लीड जो डेवलपमेंट मॉडल जिसमें स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मीन स्टेट ही इंटरवेंट करता है सारी एक्टिविटीज़ को। दूसरा जो है हमने देखा कि प्राइवेट बेस्ड कैपिटलिस्ट मॉडल, कैपिटलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसको पूरा लीड कौन करता है, उसको स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता, प्राइवेट प्लेयर्स ही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। बट देयर इज़ अनदर मॉडल एज वेल विच इज़ अडोप्ट बाय द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ मिक्स डेवलपमेंट मॉडल। सो उसमें क्या होता है कि some matters or we can say some activities are controlled by the state and some other activities are controlled by the private players. So India adopt separate differently path apart from the state led development model and the capitalist model. So India's development model is known as the mixed development model। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे हमने सारी देखी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर हम देखें
कि मेडिवल टाइम में क्या हुआ, वेंस यूरोपियंस जो ये ईस्ट इंडियन कंपनी और अदर कंपनियों ने जो पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में जो जाल फैलाया उन्होंने, सो इन द यूरोपियन इन द मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम, द मेडिवल हिस्ट्री, if we analyze the medieval part, then we conclude that the all companies and all European countries have had the same common objective, that is to exploitation at very high cost, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन उनको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गेन, तो इकोनॉमिकल गेन पे उनका टारगेट था मेडिवल टाइम पीरियड में, ठीक है। बट ड्यू टू दिस, मीन्स ड्यू टू द ग्रीड एंड ड्यू टू द ह्यूज एक्सप्लोइटेशंस, मैनी प्रॉब्लम्स केम अराइज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल डिग्रेडेशंस, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन क्वालिटी, लाइफ स्पैन जो है वो सब हमें कम देखने को मिलता है इन द यूरोप। फिर बट अगर हम अच्छे से उसको एनालिसिस करें तो 19th सेंचुरी में फिर क्या होता है, डेवलपमेंट मॉडल कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। और डेवलपमेंट इन द 19th सेंचुरी मीन्स द रेमेडी फॉर द शॉर्ट कमिंग एंड द प्रोग्रेस टू द डेवलपमेंट। मीन्स जो मेडिवल टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम, जो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे, जो लाइफ जो है क्वालिटी वो जो डिक्लाइन हुई, उसकी उस रेमेडी को, रेमेडी का मतलब ये होता है उपचार करना, है ना। तो डेवलपमेंट मीन्स द रेमेडी फॉर द शॉर्ट कमिंग एंड द प्रोग्रेस टू द डेवलपमेंट, कि उस कमी को कम किया गया 19th सेंचुरी में, और डेवलपमेंट उस रूप से जो है वो देखा गया कि मतलब जो कमियां हैं उसको दूर करना, ये 19th सेंचुरी का था। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे 20th सेंचुरी में आके क्या हुआ, टू मेनली डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो प्रीवेल हुई। मतलब हमें दो स्ट्रेटजीज देखती हैं। वन इज़ द न्यू लिबरलिज्म, in which neoliberalism theory is also associated with the capitalist और USA based मॉडल, जिसमें क्या है कि स्टेट का इंटरवेंस बिल्कुल कम होगा और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में होंगी, जहाँ पे कंपटीशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगी और प्राइवेट प्लेयर ही पूरा रन करेंगे कंपनीज़ को। ये 20th सेंचुरी का एक मॉडल है। दूसरा जो 20th सेंचुरी का मॉडल है उसमें कुछ अदर डेवलपमेंट भी मॉडल हमें दिखाई देते हैं, जिसमें गांधीयन डेवलपमेंट मॉडल, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट की बात की, पीपल्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट मॉडल दिखता है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल भी दिखता है कि छोटे छोटे संगठन मिलकर, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बोलते हैं, उस रूप में डेवलपमेंट मॉडल भी हमें दिखाई देता है। और अभी आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स एंड वी कैन से इन द 21st सेंचुरी, अभी जो डेवलपमेंट मॉडल हमें दिखता है वो क्या है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल, कल्चरल एंड अदर डेवलपमेंट भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट मॉडल का टाइम स्पैन हमने देखा कि कैसे डेवलपमेंट का मॉडल चेंज हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द डेवलपमेंट। So first theory is the modernization theory. This theory emerged during the time period of 1945 to 1961. Means we can say that after Second World War and before the Cold War era, this particular theory emerged. Especially this theory based on the USA model, means capitalist model. And the main thinker who support this theory is W. Rostow, Emil Durkheim and Max Weber. तो इन्होंने यही कहा है कि जो स्टेट है वो कम से कम इंटरवेन करे और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में ही इकोनॉमी होनी चाहिए। एंड इसमें स्पेशली आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट आर द व्यू ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द रोस्टो, तो आप कहेंगे कि रोस्टो जो है वो न्यू लिबरल्स थिंकर हैं, मीन्स और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। और रोस्टो के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जिससे हर नेशन को गुजरना होता है। तो उसमें जो पहली स्टेज वो बोलते हैं ट्रेडिशनल स्टेज। इसका मतलब कि सोसाइटी वुड बी डोमिनेटेड बाय द पॉवर्टी एंड द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वॉज जीरो, कि एक बिल्कुल पहली स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे ट्रेडिशनल लोग सिर्फ प्रकृति के साथ रहते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्राइबल पीपल, इस तरीके की जो सोसाइटीज़ होती है वो पहली स्टेज होती है। और उसमें जो प्रोडक्शन जितनी होती है उतना ही कंजप्शन हो जाता है, तो प्रॉफिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता। द सेकेंड स्टेज गिवन बाय द रोस्टो, वो कहते हैं कि प्री कंडीशंस फॉर द टेक ऑफ। इसमें वो क्या बोलते हैं कि इसमें जो कंट्री है वो धीरे धीरे दूसरे देशों की मदद से अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। ये एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्री कंडीशंस फॉर द टेक ऑफ। थर्ड स्टेज वो कहते हैं टेक ऑफ।
टेक ऑफ स्टेज का मतलब है जहाँ पे कंट्री में बहुत सारा फिर इन्वेस्टमेंट आता है, इसके अलावा कंपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और कंपटीशन और मतलब इस तरीके से चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ठीक है, एक तरीके से धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आता है। फोर्थ स्टेज में वो कहते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी, इसका मतलब अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सभी जो पीपल्स हैं वो धीरे धीरे प्रोस्पेरेट और एक तरीके से अमीरी, हम अमीरी तो नहीं कहेंगे उसको, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हर जगह ग्रोथ देखने को मिलती है अच्छे से। ठीक है, फोर्थ स्टेज में जिसको बोला ड्राइव टू मैच्योरिटी। और फिफ्थ स्टेज एक ऐसी है जिसमें कंप्लीटली हाई मास कंजप्शंस, मीन्स लोग जो हैं वो एब्सोल्युटली कंजम्पशन करते हैं, बहुत सारी उनके पास चॉइसेस होती हैं, फ्रीडम होती है। तो ये रोस्टो ने कुछ स्टेज बताई कि कैसे सोसाइटी जो है, हर सोसाइटी को इस तरीके से ग्रो हो। मीन्स वो अमेरिका को भी वो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि अमेरिकन सोसाइटी पहले ट्रेडिशन थी, ठीक है, पावर्टी थी, वहाँ पे प्रिमिटिव मेथड होते थे प्रोडक्शन के, सिर्फ जितना प्रोडक्शन उतना ही कंजप्शन होता था। फिर सेकंड में अमेरिका ने यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश इन देशों की मदद लेना स्टार्ट किया, तो ये प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ हो गया। थर्ड स्टेज में क्या है कि धीरे धीरे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट और इस तरीके की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। फोर्थ में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आई, लोगों के पास पैसा आया, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाई देने लग गया, ये है ड्राइव टू मैच्योरिटी। और फिफ्थ स्टेज में कि अब अमेरिका इतने अच्छे से टॉप पे है। तो ये कह रहा है कि इसी तरीके से हर सोसाइटी को डेवलपमेंट जो है वो अचीव करना होता है, ये रोस्टो ने बोला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो एंड्रू फ्रैंक ने दी थी 1950s 60s एंड 70s में। इसमें क्या बोलते हैं, ये अगेंस्ट हैं किसके, जो हमने देखा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के। और वो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं किन का, जो डेवलपिंग और पुअर्स कंट्री का। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने भी देखा होगा जैसे अभी ज़्यादातर देश जो है वो अफ्रीकन कंट्रियों के साथ सहयोग कोऑपरेशन की बात क्यों करते हैं। उसका रीज़न ये है कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जैसे ये जो देश है क्या करेंगे, इन छोटे देशों को, खासकर चाइना और ये जो यूरोपियन कंट्रियाँ तो ऐसी जाल में फंसाती हैं, उनको क्या करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। और फिर क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी को ठीक करने के साधन होते नहीं, कल को वो टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीनरी, कोई आइटम ख़राब होता है तो वापस से वो डिपेंड किस पे हो जाएंगे, उन्हीं डेवलप देशों पे जिन्होंने उनको वो चीज़ें दी हैं। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो ये मॉडल है, जो मॉडर्नाइजेशन नाम का जो कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है डेवलपिंग और पुअर नेशन के लिए, और उससे ये जो गरीब देश हैं ये डिपेंड हो जाते हैं डेवलप कंट्री पे। ये इस थ्योरी पे जोर देती है। और दूसरी फिर ये जब अमीर देश हैं ये क्या करते हैं, उन गरीब देशों का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से चीप लेबर उठाएंगे, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक और चीज़ ले लो, अभी देखो श्रीलंका में जो क्राइसिस देखने को मिले, अभी पाकिस्तान में जो क्राइसिस देखने को मिले, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना आजकल यही कर रहा है कि दूसरे देशों को पैसा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ करा देगा, और एक तरीके से उनको डिपेंड बना देगा चाइना के ऊपर। और फिर बाद में क्योंकि वो चुका नहीं पाते कर्ज, तो फिर चाइना उनको एक तरीके से वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की ज़मीन, ये सब अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये एग्जांपल है डिपेंडेंसी थ्योरी का। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। क्या कहती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? वर्ल्ड सिस्टम का मतलब ये है कि इट इंस्टीट ऑन, ये कह रहा है कि एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इस थ्योरी का ये मानना है कि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कराने होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू टाइप ऑफ द सिस्टम्स प्रीवेल इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं सम हाउ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऑल्सो सम हाउ एसोसिएटेड विद द न्यू लिबरल और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, बिकॉज दे फेवर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड दे फेवर द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश टाइम पीरियड। कि जैसे ब्रिटिश ने पूरी जो दुनिया में रूल किया, एक सिंगल करेंसी उस समय होती थी, सिंगल मार्केट। जो लंदन है वो, लंदन को इसीलिए फेमस माना जाता है क्योंकि वो पूरा एक हब होता था मार्केट का, ठीक है। और इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ये सपोर्ट करते हैं, तो सम हाउ मॉडर्न सिस्टम थ्योरी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कैपिटलिस्ट थ्योरी। बट एक चीज़ ये जो एक्स्ट्रा बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अदर चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, जैसे हिस्ट्री डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, इनसे जब पूछा गया कि क्या आप एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड की बात करते हो, जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी में, तो वो क्या कहते हैं कि डिपेंडेंसी होती है तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जब इनसे पूछा गया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के थिंकर से, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड, ये हमारा मानना नहीं है। हमारा जो जोर है, इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन फ्री वर्ल्ड वी फोकस ऑन द एरिया सच एज इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने वो बात कही अपनी।
नेक्स्ट जो है थ्योरी वो है स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, स्टैंड पॉइंट थ्योरी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच वन इन दिस वर्ल्ड वुड टेक ए पोजिशन टू व्यू द वर्ल्ड। हर एक का अपना परसेप्शन है, हर एक का अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मैं एक लेक्चर के लास्ट में कई बार ये रिपीट करता हूँ कि भाई जो फाइनेंशियली जो है स्टेबल, जैसे कई लोग जॉब करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फैमिली में ठीक ठाक फाइनेंशियल उनके पास स्टेबिलिटी है, तो वो लोग हो सके तो कंट्रीब्यूशन करें इस चैनल को, ठीक है। अब कुछ लोग इसको गलत वे में भी ले सकते हैं, कुछ कहेंगे कि एक तरीके से सर जो हैं वो पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे जो तार्किक जो लोग होंगे, जो दूसरा व्यू है वो ये साफ मानेगा कि भाई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट सेड कि इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, देन यू कैन कंट्रीब्यूट, अदरवाइज तो कोई इशू है ही नहीं ना। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो एक होता है क्या है कि आपको टाइम निकाल के और जो कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, तो उसमें ये तो है नहीं कि मैं फिक्स कोई चार्ज की बात कर रहा हूँ। आई जस्ट से कि दैट इफ़ यू आर स्टेबल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट्स टू हेल्प मी, देन यू कैन डोनेट समथिंग, एनी अमाउंट्स, है ना। तो वो उस रूप में, मतलब हर किसी का परसेप्शन है चीज़ों को देखने का, ठीक है ना, आप किस रूप से चीज़ों को देखते हो। तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी यही कहती है कि मीन्स एवरी इंडिविजुअल, एवरी ग्रुप हैव सम परसेप्शंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट मॉडल। और इसमें क्या होता है, सब पॉइंट थ्योरी में ये कह रहे हैं कि फर्दर ही ये जो थिंकर हैं सर स्टैंड पॉइंट थ्योरी के, वो कहते हैं दैट द रूलिंग ग्रुप डोमिनेटेड द सबऑर्डिनेट ग्रुप्स एंड द ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट ग्रुप हार्डली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस। कहने का मतलब जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, जो पुअर पीपल हैं, जो नीचे तबके के सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट मॉडल में, और जो डोमिनेंट वर्ग है वही एक्चुअल में रूल करता है। तो ये जो पॉइंट है ये है स्टैंड पॉइंट थ्योरी का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट। तो वेरियस अप्रोच इसमें दे रखी हैं कि इसमें सबसे पहला तो वही है कि न्यू लिबरल्स अप्रोच क्या है। यहाँ अप्रोच जब भी कोई वर्ड आए तो अप्रोच का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, मीन्स चीज़ों को, डेवलपमेंट को आपको समझना है, जैसे आपका नज़रिया, वहाँ जो सेंस में भी आप ले सकते हो। तो एक जो अप्रोच है वो है न्यू लिबरल्स अप्रोच। न्यू लिबरल अप्रोच जो है उसके जो फेमस जो सपोर्टर हैं वो हैं एडम स्मिथ। और ये क्या है, न्यू लिबरल अप्रोच जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। और ये 1980s 1990s के बाद से ये जो थ्योरी है न्यू लिबरल अप्रोच, ये और ज़्यादा एक्सपेंड हुई, खासकर WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ये जो चीज़ें जो इमर्ज्ड हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं हमें जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये कंपटीशन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहते हैं स्टेट का इंटरफेयर जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा ये लोगों को कहते हैं, मीन्स इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इंटरफेयर नहीं करे, बल्कि स्टेट सिर्फ रूल जो है वो इजी बनाए, मतलब रूल्स को इजी करे, करेंसी को स्टेबलाइज करे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे जोर दे। तो कहने का मतलब ये सिर्फ स्टेट को चाहते हैं कि तुम सिर्फ कानून ऐसे इजी बनाओ जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो कर सके। लेकिन इसमें आपको इसका थोड़ा सा आपको वो लिखना हो नेगेटिव पॉइंट, तो याद रखना न्यू लिबरल का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इनइक्वालिटी। जैसे एक रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं तो ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट है, 2018 में पब्लिश हुई थी। वो इंडिया से रिलेटेड ये कहती है, और उसने वर्ल्ड में भी रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड लेवल पे भी, बट इंडिया लेवल पे हमें जानना ज़रूरी है। जैसे ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट ये कहती है कि 1% जो है ना हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, सिर्फ 1%, 1% पॉपुलेशन के पास करीबन 60% ऑफ द वेल्थ है। आप सोच के देखो, मीन्स टॉप मोस्ट जैसे अंबानी और जो भी अडानी, ये जो ग्रुप है ऊपर के जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास पूरी इंडिया की GDP का 60% शेयर है। ये क्या है, इसका मतलब इनइक्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो ये जो नियो लिबरल्स आइडियोलॉजी है, इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेम इन द USA में भी आज के दिन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि USA जो मॉडल है वो प्योर न्यू लिबरल और कैपिटलिस्ट मॉडल है। तो वहाँ पे गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे जैसे अपने यहाँ सब्जियाँ मार्केट में आप लेने जाओगे, उसी तरीके से वहाँ गन आपको मिल जाएंगी मार्केट में, इतना इजीली वहाँ पे है गन कल्चर। और उसी के कारण कई लाख लोग मरते हैं। ये रिपोर्ट कहते हैं कि हर साल कई लाख लोग यूरोप में, इसमें अमेरिका में, ये गन कल्चर के कारण मरते हैं। इसके अलावा प्रोस्टिक्यूशंस वहाँ पे, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिक्यूशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अमेरिका में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ब्लैक और जो वाइट के बीच जो अक्सर फाइट देखने को मिलती है, तो न्यू लिबरल आइडियोलॉजी के चैलेंजेस हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमेशा उंगली उठती है। और इसीलिए ध्यान रखना, हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी की जो रेलिवेंस है वो दुनिया में कभी कम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, जहाँ पे भी कैपिटलिज्म है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, है ना।
और क्योंकि इनइक्वालिटी है तो बाद में क्राइम बढ़ेंगे और फिर क्रांतियाँ होंगी। तो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा रिवेल करेगी। इस मामले में अगर हम कहें इंडिया ज़्यादा अच्छा देश है उस सेंस में समझे, क्योंकि हम अडोप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अपनी नीड के हिसाब से हम चीज़ें बदलते हैं। जैसे एक एग्जांपल वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी थ्योरी से एसोसिएटेड है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अपार्ट फ्रॉम द मार्केट हमें वेरियस अदर चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब को कम करना होगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना होगा, वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। और सिंपल सी इसमें भी एक रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। वेज होता है आपकी सैलरी जो बोलते हैं, तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई थी 2018-19 में। उसमें साफ ये बोला गया है कि इंडिया में वुमेन को 34% कम सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो यहाँ पे बात सिंपल है कि कुछ थिंकर हमारे यहाँ इंडिया के जो कुछ थिंकर, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं कि हमें स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अप्रोच पे जोर देना चाहिए। इसका मतलब हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जैसे वुमेन को अभी आप देख लो कि आर्मी में भी इतने टाइम बाद आर्मी में वुमेन्स के लिए कमीशन बना, जो एनडीए के थ्रू जो उनकी भर्ती होती है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी हमारे यहाँ पे ज़रूरत है। और स्ट्रक्चरलिज्म जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब जेंडर बेस्ड, क्लास बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको रिमूव करके और डेवलपमेंट कराया जाए। ठीक है, ये सारा है स्ट्रक्चरल। फिर है फ्रेंड्स इंटरवेंशनलिज्म। ठीक है, तो इंटरवेंशनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर करे। तो ये जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरल और न्यू लिबरलिज्म का मिक्सचर है। सम हाउ इसको आप एसोसिएटेड कर सकते हो जो मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी है जो मैंने इंडिया का स्टार्टिंग में बताया। मीन्स हमारे यहाँ पे स्टेट भी कुछ जगह कंट्रोल करता है इकोनॉमीज़ को और प्राइवेट प्लेयर्स भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल जो है दोनों का सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब ये होता है जोड़, एडिशन। इसका मतलब स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को अगर हम जोड़ दें तो ये बनता है इंटरवेंशनलिज्म। ठीक है, और इसमें सरकार का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि मार्केट का। और फिर दूसरी चीज़ ये साथ साथ में, जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जैसे कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान रख, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है, इनइक्वालिटी को इसमें रिमूव किया जाता है एक तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ सरकारें जो हैं जैसे जो गरीब पीपल हैं, मार्जिनलाइज जो वर्ग है वहाँ पे स्कीम चलाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी, नेशनल रूरल हाउसिंग स्कीम जो इंदिरा आवास योजना थी अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अलावा और जैसे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला स्कीम, ऐसे बहुत सारी जो स्कीम सरकार ने जो चला रखी हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये वेरियस टाइप की स्कीम क्या हैं? ये कहीं ना कहीं जो समाज में जो निचले लेवल पे बिल्कुल जहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं है वहाँ तक उनका डेवलपमेंट कराना है ना। तो ये इंटरवेंशन का मतलब ही कहीं ना कहीं है कि सरकार इंटरवेन करेगी उन एरियाज़ में जहाँ पे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखो इंडिया जो है वो डेवलपमेंट भी करा रही है कंपनीज़ के थ्रू, इन्वेस्टमेंट भी हम अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो अमेरिका जैसे देशों में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि न्यू लिबरलिज्म की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया का क्या है, मिक्स्ड मॉडल है ना। तो हम इंटरवेंशनलिज्म भी हमारे यहाँ दिखता है, स्ट्रक्चरलिज्म रिफॉर्म की भी हम बात करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ न्यू लिबरलिज्म भी दिख जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इंडियाज़ जो मॉडल है अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड जो बैग होता है ना, मेल्टिंग पोट की तरह जिसमें सारी चीज़ें आके मिल जाती हैं, तो वो इंडिया का मॉडल है। नेक्स्ट है एक अप्रोच पीपल सेंटर्ड अप्रोच। ये अप्रोच क्या करती है? ये कहती है कि जितनी भी और अदर इकोनॉमिक अप्रोचेज हैं उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये कह रहे हैं कि आवर फोकस ऑन द वेल्थ, एजुकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड गवर्नेंस। तो ये गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है ना। और ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल जो नीचे लोग हैं जिनको अपने अधिकार नहीं पता है उनको भी साथ जोड़ते हुए कम्युनिटी के रूप में पार्टिसिपेट करते हुए हम डेवलपमेंट कराएं। तो इसका जो पूरा अप्रोच का जो फोकस है वो पीपल सेंट्रिक ज़्यादा है। और इसका जो एग्जांपल हमें दिखता है वो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने ग्राम पंचायत को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच को ही दिखाता है। तो देखो आपको मतलब या सॉरी, आपने ये महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो अप्रोच है
वो आपको इन सभी में दिखेगी। मीन्स इंडिया जो है पीपल सेंट्रिक अप्रोच भी आपको दिखेगी, फिर जैसे मैंने कहा इंटरवेंट जो अप्रोच है वो भी दिखेगी, स्ट्रक्चरल भी, न्यू लिबरलिज्म भी। तो इसीलिए बार बार आपको ध्यान रखना है कि इंडिया एक मेल्टिंग पोर्ट की तरह है और उसमें सारी अप्रोचेज हमें दिखाई देती हैं। बट हाँ, अप्रोच अलग अलग वैसे कौन सी होती हैं, तो ऐसे सिस्टमेटिक ये आपको ध्यान रखना है कि इतनी ऐसे ऐसे ये अप्रोच होती हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है UNDP, उसने इस डेवलपमेंट अप्रोच को फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि हमें स्टेक होल्डर्स मीन्स सभी को साथ लेके, जैसे उसमें मीडिया भी आ जाएगा, कॉमन पीपल भी आ जाएंगे, एसोसिएशंस भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आ जाएंगे, जुडिशरी भी आ जाएगी, सभी को साथ मिल के काम करना होगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा और एक इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में एक हार्मनी, एक बैलेंस लेके चलना होगा, ठीक है। और कल्चरल डाइवर्सिटी और इन सब के ऊपर भी हमें वर्क करना होगा। ये है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द। और ये जो है एक ब्रूटन लैंड कमीशन भी आया था जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर की बात की गई थी। इसका मतलब कि हमारा एक फ्यूचर जो है आने वाला समय वो ऐसा हो जहाँ पे सभी लोगों इक्वली वहाँ पे डेवलप करें, पीसफुल सोसाइटी हो, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ग्रीन इन्वायरमेंट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे पोल्यूशन हो, क्राइम हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, ये सब ना हो। तो आवर कॉमन फ्यूचर का जो टारगेट है वो यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ये प्रोफेसर अमृता सेन ने इसके बारे में बोला था। इस अप्रोच का मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गुड एजुकेशन, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये सब भी प्रोवाइड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो बोला था वो है चॉइसेस, मीन्स वी हैव द चॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द अमृता सेन, द रियल डेवलपमेंट मीन्स दैट पर्सन हैव द चॉइस। जैसे आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो यू हैव द चॉइस एंड यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फुलफिलिंग दीज चॉइसेस। कि आपके पास वो इतना स्ट्रक्चर हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आप म्यूजिशियन, आप डॉक्टर, साइंटिस्ट, आप कुछ भी ऐसे जो बनना, फुटबॉलर बनना चाहते हो, तो आपके पास वो अकेडमीज़ हो, वो प्लेटफॉर्म्स हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे आप अपनी चॉइस को फुलफिल कर सकें। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। और ये प्रोफेसर अमृता सेन ने इसको दिया था। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका जोर है, खुशी पे, एक तरीके से हैप्पीनेस से आप इसको जोड़ सकते हो कि सिर्फ आप पैसे से ही ना देखें डेवलपमेंट को, आप ये भी देखें कि हैप्पीनेस कितनी है। जैसे भूटान ले लो, भूटान वैसे गरीब है लेकिन जो ह्यूमन हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें भूटान टॉप नंबर पे आता है। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ये यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी जोर देना होगा। नेक्स्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये 2000 में इसको लिया गया था और 2015 तक का इसमें टारगेट रखा गया था, ठीक है। फिर 15 तो वैसे निकल गया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस मिलेनियम गोल को ही आगे फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तब्दील कर दिया। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे पॉवर्टी को रिमूव करना, प्राइमरी एजुकेशन पूरी दुनिया में इंश्योर करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन को एम्पावर करना, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें थी। तो इन्हीं को ही फिर आगे 15 में फिर से इसको चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बना दिया गया, जिसके तहत क्या है कि 2015 में ये आया था और 2030 तक का इसमें टारगेट रखा गया कि 2030 तक हम स्पेशली 17 स्पेसिफिक एजेंडा हैं जिनको फुलफ़िल करेंगे। तो इसमें इस बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे हंगर को हम ख़त्म करेंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योर करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे, सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसके अलावा सी मैराइन जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अलावा हम पूरी दुनिया में पीस को एस्टेब्लिश करेंगे, लोकतंत्र डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। एम्पावरमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे और जो क्लीन एनर्जी के ऊपर जोर होगा। तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लीन वाटर, ये सारी चीज़ें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है। ये टोटल 21 इसमें जो सेट किए गए हैं एजेंडा, ठीक है ना, जो अचीव करने हैं 17 स्पेसिफिक एजेंडा सेट किए गए हैं जो 2030 तक सभी देशों को इसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा टॉपिक वुमेन्स एंड मार्जिनलाइज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सेवरल डिबेट डिस्कशन जो है पूरी दुनिया में उठता है कि वुमेन को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है।
अगर वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे तो जैसे गाड़ी में एक पटरी होती है ना कि एक व्हील होता है ना, 2 पहिए, तो अगर एक पहिया वुमेन जो अगर उसको आप पीछे रख दोगे तो वो गाड़ी रन नहीं करेगी। सो वुमेन को डेवलपमेंट कराना, उनको एजुकेशन देना, उनको इक्वली वेजेस, इक्वल उनकी राइट प्रोवाइड कराना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कराना, ये सब हमें करने होंगे। ठीक है, ये है, और वुमेन को हमें साथ लेके चलना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला भी रखे हैं, जैसे वुमेन पॉलिसी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट 2001 की पॉलिसी है ये। इसके अलावा जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उज्ज्वला स्कीम, इसके अलावा जैसे ग्रास रूट लेवल पे रिजर्वेशन जो रखा गया है 30% पंचायतों में। इसके अलावा हम बात करें कि नेशनल ह्यूमन कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश किया गया 1991 में, और अभी धीरे धीरे हर सेक्टर में आपको दिखेगा कि वुमेन जो है वो ग्रो कर रही हैं। और वैसे भी ये बोला जाता है कि क्राइम या हक कोई भी चीज़ आपको जो ये समाज में प्रॉब्लम्स उसको रिमूव करना है तो वुमेन को एम्पावर करना होगा, वुमेन की आवाज़ को मजबूत करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, वुमेन के साथ जो लड़ाई ये जो क्राइम होते हैं, जो छेड़छाड़ होती है, क्यों? क्योंकि बेचारे ये जो वुमेन हैं कहीं ना कहीं दब जाती हैं। अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखेंगे, ठीक है, पढ़े वो लिखे होंगे, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, वुमेन का एम्पावर का मतलब यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ उसका एक तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कराना है। जैसे क्या एग्जांपल से समझ लो, अभी ये जो रिसेंट में एक लड़की का जो मर्डर किया, ठीक है, जो दिल्ली में जो हमने देखा कि एक ने लड़की जो है उसके 30-40 टुकड़े करके उसको बेचारी को फेंक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो घटना है ये दिखाती है कि वैसे तो वो लड़की पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, वो इवन वो अपने फादर से भी लड़ गई थी, ठीक है, कि भाई मुझे अपनी चॉइस के हिसाब से जीना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मामला आपको थोड़ा सा समझोगे तो आप एनालिसिस करोगे कि कहीं ना कहीं जो उसका बॉयफ्रेंड था, जब उसको टॉर्चर कर रहा था पिछले 2 साल, मतलब 2 साल पहले भी उसने उसको मारा है, वो सब वायरल हो रहा है उसकी फ़ोटोज़, ठीक है, कि उसको जो इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लड़की है उसने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया? कहने का मतलब ये है, आप पढ़े लिखे आप हो, आप इंडिपेंडेंट बनो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हमें अपनी आवाज़ भी उठानी होगी और गलत के खिलाफ तो बिल्कुल उठाना होगा। देखो हमारे यहाँ सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जैसे जो वुमेन है ना, कई बार क्या मामला है कि सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इंगेज हो गई मान लो, तो बाद में ना वो अगर वो लड़का पार्टनर उसका शोषण भी करता है, मारपीट करता है ना, तो बता नहीं पाती। खासकर शादी से पहले ये जगह अक्सर देखने को मिलता है, और शादी के बाद भी है, ये दोनों केसेस में ही ले लो। शादी से पहले फिर जब वो मार खाती हैं या तब वो इसलिए पेरेंट्स को नहीं बता पाते क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स को अगर पता लग गया कि ये हमारी बेटी सेक्सुअली इंगेज थी तो क्या मेरा हाल होगा, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो दब जाती हैं। शादी के बाद वो इसलिए नहीं बोल पाती, उनको लगता है कि अब तो शादी हो गई है तो अब तो क्या ही फ़ायदा, फिर क्या होगा, एक तरीके से फिर वो सहन करती हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि भाई उसकी भी अपनी इंटीग्रिटी है, उसकी भी अपनी डिग्निटी है, उसकी भी अपनी रिस्पेक्ट है। तो गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाना होगा, और वो तभी आएगा जब आप एजुकेशन के साथ साथ आप उनके अधिकारों की भी बात करेंगे। और ये शुरुआत होगी ग्रास रूट लेवल पे, मतलब घर से, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हम एटलीस्ट हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने छोटे बहन भाई जो हैं, जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड हैं, उनको समझाएं कि कोई गलत कुछ करता है तो आप बोलिए, आप हमें बताइए, इस तरीके से हमें करना होगा। तो धीरे धीरे तभी समाज बदलेगा, और यही रियल में जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तभी होगा, रियल जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो तभी फुलफिल होगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड, और इसके अगर आपको पूरे चैप्टर के क्रीम नोट्स चाहिए जो प्रॉपर इस पूरे मतलब इग्नू के बुक को स्टडी करके और कुछ इंटरनेट की मदद से जो बनाए जाते हैं, तो वो 4 से 5 पेज कुछ ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये मेरे मतलब नोट्स हैं, ई फॉर्मेट में इसको मैंने बनाया है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ में ये नोट्स आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के मिल जाएंगे, तो आप मुझे मेल और मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ठीक है, और जो कहीं उनकी फैमिली भी फाइनेंशियल स्टेबल है, तो आप लोगों से मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियली तो मुझे कंट्रीब्यूट करें इस चैनल को। और आई विश कि मेरा ये जो चैनल है वो बहुत ग्रो करे और एक ऐसे क्वालिटी कंटेंट ये प्रोवाइड करे जिससे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आए, ठीक है। तो ये मेरा विज़न है, और इसमें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ी ही एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। सो थैंक यू सो मच।